Today I am going to explain you the chapter coordinate geometry. First of all, we know the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज एक्सिस। ये अगर हम आपसे डेफिनेशन पूछें कि एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस और एक्सेस। एक्सिस ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है, पहले तो आप ये जान लीजिए। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे फॉर्म होते हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है इसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट करेंगे, जो एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाएगा, और इसे हम वाई डैश के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर इट इज़ वाई एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स इज नोन एज ओरिजिन। नाउ फॉर साइन कन्वेंशन, जीरो से राइट साइड अगर हम चलेंगे तो एक्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जीरो से अपवर्ड चलेंगे तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और अगर जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो एक्स नेगेटिव, इट इज़ साइन कन्वेंशन, और एक्स एक्सिस के नीचे फिर वाई नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। नाउ सपोज P be any point is here. Now these two lines divide this plane into four parts. First part, second part, third part and fourth part. First part is known as first quadrant and second part is known as second quadrant. Third part is third quadrant and fourth part is fourth quadrant. So these are four quadrant. Now let P be any point in first quadrant. So how to write the coordinate of point P? Draw a perpendicular from P to x axis and measure this length. Suppose it is small x. Now again draw a perpendicular from P to y axis. Suppose this length is y. So the coordinate of point P is written as x, y. This part is known as abscissa and y is known as ordinate. So point P denoted as pxy. This is coordinate of point P. Now for sign, in first quadrant x means this and y means this. So x first quadrant is enclosed by positive x axis and positive y axis. So the sign of first quadrant is plus plus, means both is positive, both are positive. Now for second quadrant, when we go in second quadrant, then what is x? X is negative, and what is y? Y is positive. This area is enclosed by negative x axis and positive y axis, so it is negative and y coordinate is positive. Again for third, x is negative and also y is negative, so this is negative, this is negative. In fourth quadrant, x is positive and y is negative. So these are the coordinate system of x axis and y axis. For example, plot the points -1, 2, 2, 3, 4, -1
in the coordinate system. So draw the coordinate axis, x axis, y axis, and it is origin. Negative x and positive y. Negative x is here and positive y here. So this point is lie in the second quadrant. So this is -1 and 2 in second quadrant, and for 2 3 both are positive, then it is lies in first quadrant. So it is in first quadrant. And 4 -1, x is positive, y is negative, x is positive, y is negative in fourth quadrant. So 4 -1, it is in fourth quadrant. This is the method to write the point in coordinate system. Now new topic is distance formula. Draw x axis, y axis, and let P and Q be 2 points on the plane in which the coordinate of P is x1 y1 and Q x2 y2. So we have to find the distance between these 2 points. Now procedure is, first of all draw the perpendicular from P and Q. आप यहाँ से एक एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे. ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी डोनेट कर दीजिए एल और एम से. अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी एन ऑन क्यू एम. यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ कर दिया. अब आप देखें ये भी एक राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने. अब आपको पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इन ट्रायंगल पी एन क्यू, अब अगर पी एन की वैल्यू निकाल ली जाए और क्यू एन की वैल्यू निकाल ली जाए तो हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पी एन इज इक्विवेलेंट टू एल एम. अब देखिए हमने जो कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ उनके बारे में पहले समझते हैं. अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका मीनिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 होगा. क्लियर. नाउ अगर Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो Q का कोऑर्डिनेट x2 ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालिए और ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा. सो इट इज x2. अब बात करते हैं LM की. LM डिस्टेंस आपको निकालना है, तो पूरे डिस्टेंस में से अगर OL निकाल लिया जाए तो आपको LM मिल जाएगा. सो क्लियरली यू सी दैट LM इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. ओके. नाउ फॉर y-axis, along the y-axis, this distance is y coordinate y2. So put here it is y2, and this length is y1, therefore it is also y1. It is also y1. ये पैरेलल चला रहा है इसलिए यहाँ y1 है तो यहाँ भी y1 हो जाएगा. अब हमें Qn का डिस्टेंस निकालना है, तो Qn कैसे लिखेंगे हम लोग. y2 से y1 को अगर माइनस कर दें तो यहाँ मिलेगा आपको y2 माइनस y1. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ Qn. अब आप देखिए आपके पास LM आ गया. LM इज जस्ट इक्वल टू Pn. वही डिस्टेंस आप यहाँ भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि ये पैरेलल लाइन आ रही है इसलिए जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा. अब आपने Pn भी लिख लिया और Qn भी लिख लिया. अब हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल PNQ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे
अब आप यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल पी एन क्यू, एंगल पी एन क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। नाउ पी एन स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन इज what y2 minus y1 whole square and this is pq square. Now pq इक्वल टू, आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ये पुट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. This is distance between two point P and Q whose coordinates are given x1 y1 and x2 y2. अब आपको ये फार्मूला हो गया. अब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. NCERT एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Find the distance between the following pair of points. First is 2 3 4 1 means distance between 2 3 and 4 1, and similarly for these two. So first we consider the first part. Find the distance between 2 3 and 4 1. What is distance formula? First of all write distance formula. D इक्वल टू, अब डिस्टेंस को हम लोग D से डिनोट किए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब आपके पास देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके नाम लिख दीजिए. सपोज अभी हमने लिखा है इनका नाम x1 y1 एंड इट इज़ x2 y2. सो one by one put the values. x2 is 4 minus x1 is 2 whole square plus what is y2? y2 is 1, y1 is 3 whole square. Now simplify it. 4 minus 2, 2 square plus 1 minus 3 minus 2 square, 4 plus 4 and it is 2 root 2 unit. This is your answer. ये तो फर्स्ट पार्ट का है. आइए अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं साथ ही. नाउ सेकेंड पार्ट इज -5 7 -1 and 3. Suppose it is x1 y1 and it is x2 y2. Now formula is D equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब आपको सारे वैल्यूज इसी में पुट करने हैं. सो फर्स्ट वी राइट x2 is -1 माइनस x1 is -5. सो माइनस मिल करके यहाँ ये प्लस हो गया, प्लस y2 is 3, y1 is 7 होल स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई इट. 5 minus 1 4 स्क्वायर प्लस 3 minus 7 minus 4 स्क्वायर. सो इट इज़ 16 and it is also 16. So it is written as 4 root 2 यूनिट. डिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट हम लोग, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट ही लिखेंगे. नाउ थर्ड पार्ट इज
AB and minus A minus B. So write it x1 y1 and it is x2 y2. Formula is D is equal to under root x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप फार्मूला हर बार लिखें जिससे कोई मिस्टेक होने का चांस न रहे। d इक्वल टू पुट द वैल्यूज x2 इज माइनस a माइनस x1 इज a होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस b माइनस y1 इज b होल स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर and it is written as 4a square plus 4b square. Now 4 is common, so a square plus b square. अब आप 4 इसमें से भी बाहर ले सकते हैं and square root is 2, so under root a square plus b square. This is your answer, this unit. Question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 1 are collinear. What is the meaning of collinear? Collinear का मीनिंग है अगर 3 पॉइंट्स A, B, C एक ही लाइन पे लिए जाएं, that means they are collinear. लाइन से बना लीनियर, एक ही लाइन पे बैठने वाले तीनों पॉइंट्स कोलीनियर होंगे। जैसे यहाँ कोलीनियर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या दिखाएं कि वो पॉइंट्स कोलीनियर हो जाएं। अब देखिए, आप अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC। अब सपोज कीजिए कि इसमें से कोई एक पॉइंट इस लाइन से बाहर हो गया, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ AC, अब B मान लीजिए यहाँ हो गया, तो अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया, B के इस लाइन से इधर या उधर कहीं भी जाने से ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो जब ट्रायंगल बन जाएगा तो आप लिखेंगे AB प्लस BC। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा। सो AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। ये इक्वल का साइन नहीं रखेगा। तो अब इक्वल होने का मतलब कि पॉइंट B इसी लाइन पे हो। तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इसको कोलिनियर दिखाना है तो आप AB डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए और AC निकाल लीजिए। मीन्स तीनों डिस्टेंस निकाल करके किसी दो को ऐड करने से अगर आपका तीसरे के बराबर हो गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। So let A is 1, 5 and B is 2, 3 and C is -2, -1. So first of all find AB is equal to, अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, सीख लिए हैं, x2 minus x1, suppose it is x2 y2 and it is x1 y1, 2 minus 1, so 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square and it is equal to 2 minus 1 1 square 1 plus 3 minus 5 minus 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो इट इज़ अंडर रूट 5। नाउ फॉर BC suppose it is x1 y1 and it is x2 y2, so first of all x2 minus x1 minus 2 minus 2 whole square plus y2 minus y1, y2 is -1 minus 3 whole square and it is equal to -2 minus 4 whole square plus -4 whole square, so it is equal to 16 plus 16
and it is written as 4 root 2. Now for AC is A and C, so it is x1 y1 and it is x2 y2. So x2 minus x1, so right here minus 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 minus 1 minus 5 whole square. So right here minus 2 minus 1 minus 3 whole square plus minus 6 whole square. 9 plus 6 6 are 36. 36 plus 9 is 45 and it is written as 3 root 5. Now observe, AB is equal to root 5, BC is equal to 4 root 2 and AC is equal to 3 root 5. So किसी भी दो को आप अगर ऐड करें तो वो तीसरे के इक्वल नहीं होगा। जैसे AB को और BC को हम ऐड करेंगे तो यहाँ रूट 5 है, रूट 2 है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 में रह जाएंगे और ये अकेले इसके बराबर नहीं आ पाएंगे। सो वी सी दैट देयर इज नो टू डिस्टेंस विच इज हुज सम इज इक्वल टू द थर्ड। क्लियरली points A, B and C are not collinear। बस इतना दिखा करके आपको यही लिख देना है।